Congratulations on the launch of Fifth Veda. Hi, everyone. That's so weak. Hi, everyone. Phir le aaya dil, Whistling Woods mein. I'm really very happy to be here. This has become an annual affair for me. किसी ना किसी बहाने मैं यहाँ आ जाती हूँ. मेघना या सुभाष जी बुलाते हैं और मैं दौड़ी चली आती हूँ. Because I just love being here. When I was in college at Xavier's, I wanted to do some course in film. I actually wanted to train to be an actor, and there was no real good course available in Bombay. So I'm envious of all of you who have got this opportunity to be here at Whistling Woods, to learn, to hone your skills in different faculties of filmmaking. When I was asked to come inaugurate Fifth Veda, I was very intrigued because firstly, the name Fifth Veda sounded very interesting. So I said, what really is this? And then Meghna told me that it's the cultural hub that we're starting at Whistling Woods. And then she explained things a little more in detail to me. And I thought it was extremely pertinent. At Xavier's, you know, we'd been exposed to, we had something called the Indian Music Group, where we'd have these regular concerts, classical music concerts. We had various departments doing small cultural programs at different points: dance, music, poetry reading, literature, book reading sessions. But that's an academic college, and this is a film institute. And I think it's very crucial for us film people to be exposed to different cultures. I don't mean to sound like a teacher, but hi, congratulations on your Padma Shri. Sorry, I had to say this, Sanjay. I haven't had a chance to meet you before. I think it's very important because most often than not, we're living very closed lives. We think that the films we make, the little world we live in, the bubble we live in, is really what the world is all about. But it's not. I know that you film students come from all over the country to study here. So you all have been exposed to your specific cultures. But in an urban city, in a metropolis like Bombay, those lines get blurred. Sometimes we so easily adapt to or adopt the urban culture, which is a homogenized culture, that we lose touch with our roots. But it's very enriching when we are able to suffuse into an urban, larger culture, but retain our connection with our roots. And are you looking bored by any chance? I'll tell you this because from my own experience in film, for example, each time I've done a film which is rooted in a particular culture, it's been that much more exciting for me. It's given me the opportunity to tell a completely different story, a story that I didn't know existed, a reality that I probably didn't know existed. For example, when I was doing Ishqiya, when I first read the script, I was a bit taken aback by the fact that this woman was so, of course it's fictional, but all of fiction also derives from culture. So I was very taken aback by the spirit of this woman, and I kept saying, but really, small town India, does it have these kind of women?
And it was so parochial of me, so small-minded of me to have said that, because a large part of our population lives in small towns and villages, and that is the reality of India. There are strong women there. There are women who are leading lives on their own terms. And I found that very interesting, because I just thought that we women in the urban cities are liberated, are educated, and therefore we get to do that. And slowly, with every film that I've done, I've explored a different reality. I've explored a different world. I've explored a different culture, and that's been very exciting for me, and that's been very exciting for audiences to watch, and therefore those films have done well. I think culture is not just about music and dance and festivals. Culture is all of that, and it's a way of life. And through film, we get an opportunity to really explore and expose different ways of life. Which is why it's interesting that Whistling Woods has decided to launch the Cultural Hub, so that we get exposed to different people, to their cultures, to their realities, to the possibilities, and therefore to different stories. As a student of sociology, I keep saying that, sociology taught me to appreciate the possibility of possibilities. This exists, but this also exists, and then this also exists. So, it just opens up your mind, it opens up your world, your creative juices begin to flow. Which is why it's so important to know that the culture that you're familiar with is not the only culture. And within our country, there's so much diversity that it becomes that much juicier when you're able to tap into that, to write a story, to tell a story, to live a story. I know I wanted to say something else, but I'm looking at Sanjay there, and for some reason so I really want to applaud Whistling Woods for having done this, for opening your minds, for opening our minds, and for therefore making sure that the work that comes out of the future generations, or at least not making sure, but at least facilitating the fact that the work that comes out of you people who are sitting here is that much more varied and interesting and exciting. Just make the most of it. There is so much that will be there to experience for all of you in the time that y'all are here, and then go explore the world and show us what you see in the world. Thank you. आप सबको मेरा नमस्कार, आदाब ते सत श्री अकाल। सुभाष जी, अभी एक मैजिक हुआ है 10 मिनट पहले, जब विद्या जी, आप एंड वी हैव अ ग्रेट पर्सनैलिटी हमारे सामने हैं, मौजूद हैं, एंड एक सेवक भी था वहाँ पे स्टेज पे, जब वो लाइट जलाते हैं, व्हाटएवर, लाइट को जलाया तो नहीं जाता, वो ऑलरेडी जली होती है, एनीवे, बट इट मेक्स सेंस। उस वक्त हम लोग पीछे बैठे थे ग्रीन रूम में, तो सी शार्प नोट, जिसे हिंदी में काली एक कहते हैं, सी शार्प नोट इज द नोट ऑफ टुडे आई एम परफॉर्मिंग, is a basic note of music also, C and C sharp. तो मैंने पंडित प्रदीप जी को बोला कि आप उसे मोबाइल पे कॉन्स्टेंटली बजाते जाइए, कि मैं उसके ऑरा से टूटना नहीं चाहता। Even though when Vidya ji entered also I was listening that, you remember, something was going on. अब मुझे लगा कि जब स्टेज पे इनॉग्रेशन के लिए मैं जाऊंगा, तो वो जो 4 मिनट का गैप होगा, मैं उससे बिछड़ जाऊंगा। और हुआ क्या, जब मैं स्टेज पे आया
तो उन्होंने एक म्यूजिक बनाया हुआ था तानपुरे का, जो चलाना शुरू किया वो भी सी शार्प ही था। तो बेसिकली ये जो कनेक्टिविटी है, ये जो चाहत होती, जहां चाह छात्रों के लिए आपने या नया प्रयास किया, कुछ बताना चाहेंगे? हमने आज विस्ली वुड्स में एक कल्चरल हब का शुरुआत की है जिसका नाम है फिफ्थ वेदा। फिफ्थ वेदा जो नाम रखा है हमने, वो हमारे 4 वेदों के बाद एक 5वां वेदा आता है जिसे हम नाट्य शास्त्र कहते हैं, जिसके अंतर्गत नृत्य, संगीत, ड्रामा, स्पीच, पेंटिंग्स और सभी किस्म की कलाएं जो हैं उसमें उभारी जाती हैं। तो हमने ये जो अभियान चलाया है कि हमारे स्टूडेंट्स जो विस्ली वुड्स के पढ़ें, तो उनमें ये आर्टिस्टिक टेम्परामेंट और आर्टिस्टिक टेस्ट भी बढ़ना चाहिए। खाली किताबों से या नॉलेज से ही सब कुछ नहीं होगा, हमें उन्हें एक अच्छा आर्टिस्ट भी बनाना है, भले वो कैमरामैन हो, साउंड रिकॉर्डिस्ट हो, इंजीनियर हो, आर्किटेक्चर हो, डॉक्टर हो, एक आर्टिस्टिक टेम्परामेंट उसमें बढ़ना चाहिए। और दैट इज़ हाउ ही इज़ गोइंग टू बी ए विनर एंड एक्सेल इन हिज आर्ट, टेक्निक और वट एवर द फॉर्म ही इज़ गोइंग टू डू दैट। सो इस अवसर पर हमने उचित समझा कि क्यों ना एक ऐसे आर्टिस्ट को रिक्वेस्ट किया जाए जो कि इन कलाओं को एक वाकई ही पूजा समझती हैं और उनकी वर्शिप करती हैं, और वो हैं हमारी कला की बेटी विद्या बालन, मैं ये कहूँगा। और विद्या जी जो आई हैं, एक मैं बहुत आभारी हूँ और हमारे स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड हैं कि ये शुरुआत आपके हाथों से हुई कि फिफ्थ वेदा की, क्योंकि फिफ्थ वेदा एक प्योर आर्ट की बात है जिसमें कि हमारी जितनी भी सांस्कृतिक कलाएँ हैं, क्लासिकल म्यूजिक है, क्लासिकल ड्रामा है, क्लासिकल पेंटिंग्स हैं, वो सब का उभार आज से शुरू होगा। ये प्रोग्राम हर वीक चलेगा और हर वीक में कोई ना कोई बड़े आर्टिस्ट आएंगे जो कि हमारे स्टूडेंट्स उनके साथ पार्टिसिपेट करेंगे और आपस में एक दूसरे से डायलॉग और वार्तालाप भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक एक बड़ा एंटरटेनिंग भी रहेगा उनके लिए, और एक जो आज हम लोग क्लासिकल म्यूजिक खो चुके हैं या क्लासिकल बातें खो चुके हैं, स्टोरी टेलिंग खो चुके हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं।
और मुझे खुशी है कि आज संजय लीला बंसाली भी आए हैं अपनी मास्टर क्लास लेने के लिए रामलीला की फिल्म लेकर, और पीयूष शाह जी हैं हमारे डायरेक्टर आए हैं, सुखविंदर जी आए हैं, इसलिए उन्होंने एक बहुत अच्छा आपके सामने गाना गाया। और अब तो विद्या जी से मैं बात कहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस इस फिफ्थ वेदा के बारे में क्या रहा? एक्चुअली जब मेघना जो सुभाष जी की बेटी हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि हम चाहते हैं कि आप फिफ्थ वेदा इनॉग्यूरेट करें, तो मैं थोड़ी सी इंट्रिग थी कि ये फिफ्थ वेदा है क्या। फिर हमारी बात हुई और उन्होंने मुझे समझाया कि ये एक कल्चरल हब है जहाँ हम स्टूडेंट्स को कल्चर के हर पहलू से, म्यूज़िक से, डांस से, अलग अलग प्रांतों के कल्चर से एक तरह से वाकिफ़ कराएंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज एज फिल्म स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली और एज आर्टिस्ट ये बहुत ज़रूरी है कि हम कल्चर से वाकिफ़ हों, उसको समझें, क्योंकि दैट enriches our work. Art, after all, is in a sense an interpretation of culture. Of course, it is personality, its beliefs, its thoughts, but it's also an interpretation of culture and your cultural experiences. तो जैसे कॉलेज में मैं जेवियर्स में पढ़ी हूँ, हमारे यहाँ एक इंडियन म्यूज़िक ग्रुप IMG होता है, जहाँ पे कॉन्सर्ट्स रेगुलरली होते हैं, हर महीने होते हैं, फिर साल में एक बड़ा प्रोग्राम होता है। तो क्लासिकल म्यूज़िक से, अब मैं कर्नाटिक म्यूज़िक से वाकिफ़ थी बिकॉज मैं साउथ से हूँ, मतलब आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे, पर आई बिन ब्रॉट अप ऑन कर्नाटिक म्यूज़िक। पर हिंदुस्तानी म्यूज़िक को मैं समझने लगी, अप्रिशिएट करने लगी थ्रू IMG। सो आई थिंक एंड जैसे इश्किया फिल्म में मुझे तानपुरा प्ले करना था, और एक क्लासिकल गाना है बड़ी धीरे जली, वो परफॉर्म करना था जो रेखा भारद्वाज जी ने गाया है। और बिकॉज आई वॉज एक्सपोज टू हिंदुस्तानी म्यूज़िक, बिकॉज आई अप्रिशिएटेड दैट, आई एन्जॉयड परफॉर्मिंग दैट। और एक पर्सनलाइज आप तभी कर पाते हैं। Of course, it's not possible to have all, experiences all at once, पर एटलीस्ट यहाँ वो एक्सपोजर मिलता है स्टूडेंट्स को, which I think is very important. दीदी आजकल हम देखते हैं समारोह में या अवार्ड फंक्शन पे उसके रेड कार्पेट पे दिवाली नहीं मनती, तो जब आप आती हैं तभी त्योहार बनता है। हाय हाय तो थैंक यू। दिवाली सारे त्योहार आपने भी वैराग्य तो नहीं ले लिया? क्योंकि ये बाहरी शक्ति ही नहीं, एक्सटर्नल ब्यूटी नहीं, इनकी इंटरनल ब्यूटी से भी जुड़ी हैं विद्या बालन। इसीलिए जब भी कोई ऐसा शुभ या कल्चर प्रोग्राम होता है तो विद्या जी को बुलाते हैं वो, जी कि विद्या जी के बारे में सब जानते हैं कि ये संस्कृति से बहुत जुड़ी हुई है, इसीलिए ये आती भी हैं, ताकि जब भी हमें विश्वविद्यालय में कभी भी हम बुलाते हैं तो पहले आती है क्योंकि ये विद्यादान है इसी, और इसमें लोगों को, बच्चों को बड़ा करना और उनको सही तरीके से आर्टिस्टिक टेस्ट डेवलप करना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हम लोग समझते हैं इसी से। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कि आज के बच्चे जो आर्टिस्ट हैं वो ये समझते हैं कि जो बाहर बॉडी है हमारी, वो जिम बहुत ज़रूरी हो गया, एक मेकअप बहुत ज़रूरी हो गया, एक स्टाइल बहुत ज़रूरी हो गया, लेकिन वो करते करते फिर भी नहीं बन पाते। क्या बात होती है, क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि वो बाहरी ही तरीके से पूरा उसको डेवलप करते रहते हैं, अंदर तरीके से इनर पावर उनकी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो ये जो फिफ्थ वेदा की एक्सरसाइज है, ये आपकी एक मेडिटेटिव एक्सरसाइज है जो कि आपकी इनर पावर को जब स्ट्रॉन्ग करती है तो आपके चेहरे पे तेज़ आता है, आपके चेहरे पे एक सच्चाई आती है, आपके चेहरे पे एक कॉन्फिडेंस आता है। और यहाँ पर जो हम कह कर रहे हैं वो जिम नहीं है, कॉस्मेटिक नहीं है, मेकअप नहीं है, ये इंटरनल पावर का एक एक्सरसाइज है। इसीलिए हमने जो आईप्रे रूम खोला अभी, जो भी विद्या जी ने उसका उद्घाटन किया, वो एक आप देखेंगे जाके, आप ज़रूर जाइए एक एक करके और देखिए कि उसमें एक मेडिटेशन सेंटर बनाया है विस्लिंग वुड्स ने, जिसमें कि बच्चे लोग जाके 10 मिनट 15 मिनट सिर्फ साइलेंस में बैठते हैं और वो अपने आप से बात कर सकते हैं, अपने अंदर झांक सकते हैं। और जो वो डेवलपमेंट होगी वो आपके जिम से और कॉस्मेटिक से और स्टाइल से और स्पा से बेटर होगी, क्योंकि वो भी साथ साथ ही चाहिए।
इसलिए हम जब अच्छी कहानियाँ, स्टोरी टेलर, जब थिंकर आएंगे हमारे पास, जब आर्टिस्ट आएंगे, तो हमारा सिनेमा का स्तर बढ़ेगा, आर्ट का और कल्चर का स्तर बढ़ेगा। तो ये सब उस चीज़ के लिए हमारी एक्सरसाइज। विद्या, पर आप ऐसे जानबूझ से हमारे से दूर होती जा रही है, मतलब कोई You are प्रयास always called on the red carpet these days with so many award functions also. I wasn't here. I was out for about, I think, a good 1.5 months on Hamari Adhuri Kahani. And then I got back and we were shooting here and we were doing nights. So it was impossible. And in Jan I was traveling, so I've not been there. But you'll see me at Film Fair tomorrow. Diya has tweeted that she's upset, unhappy. Yeah, she says you deserve the nomination for Bobby Jasu. Oh. Are you upset with that? No, actually sweet of her to say that. It's our film, obviously we feel that, you know, we feel we should get nominated and things like that. But I think there is a jury who's decided on the nominations and we should respect that. It's good to know that there's so much good work happening that they're finding it difficult to, choose the nominations. Yeah. I have no regrets about not being nominated. I'll be there tomorrow to cheer my fraternity. आपको कौन सा क्योंकि फेवरेट ऐसा तो नहीं ना कि जिस पिक्चर को अवार्ड नहीं मिलता या नॉमिनेशन नहीं होता वो पिक्चर अच्छी नहीं होती, वो पिक्चरें अच्छी होती हैं। आप पिछली लिस्ट लगा के देखिए, और 60-70 की बहुत सी क्लासिक फिल्में हैं जिनको कुछ भी अवार्ड नहीं मिला था और 40 साल तक जिंदा है वो पिक्चरें, आज भी वो क्लासिक मानी जाती हैं, लेकिन अवार्ड नहीं मिला था। अवार्ड डिपेंड करता है उनकी कंपटीशन में कौन सी फिल्में आई और जूरी किस किस्म की है, उनकी क्या सोच है। तो अवार्ड ना मिलना भी, लेकिन फिल्म का अच्छा होना अपने आप में जीत है, इसी वो बहुत बड़ी बात है। Also, I think because they're popular awards, if the film is Blockbusters. successful, you know, it's you count in the nominations. Having said that, like I said, I have absolutely no regrets. So that makes me ask you one question. How much do you trust in awards? How much faith do you have? Because there are many actors who are not going for awards this year. No, Kangana has- I have been the recipient of many awards, and I believe in them because all I've done is done my best on films, and awards are a form of appreciation from the fraternity, from audiences, and I respect that. People have all sorts of conceptions and misconceptions about awards, to each his own. विद्या, इस साल आपको सबसे किसका काम अच्छा लगा, क्योंकि आप एक अभिनेत्री हैं, वो तो चलता है। I loved Did you Kangana in Queen. I absolutely loved Kangana in Queen. जब फिल्म रिलीज हुई तो मैं नहीं देख पाई थी. I saw it on a flight recently and she was. अच्छा विद्या, एक चीज ये थी कि सुभाष जी के यहाँ पे आए हैं, बाकी तो हम लोग बुलाते हैं पाएंगे नहीं, तो विद्या, मैं कह रहा था कि अब थोड़ा खेल क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा है, हम सभी शायद कोई ना कोई चाहता होगा कि आप इंडियन क्रिकेट टीम के लिए क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, क्रिकेट भी फले, पॉलिटिक्स भी फले, मेडिसिन भी फले, इंडो पाकिस्तान भी फले, सब चीजें फले, ये आशा है। थैंक यू वेरी मच। चलो अभी डाइवर्ट कर दिया टॉपिक बॉस ने। I'm honestly not a cricket fan. जब इंडिया पाकिस्तान मैचेस होते हैं तो मैं जरूर देखती हूँ. Otherwise not really. इंडियन क्रिकेट टीम ने कहा है कि विद्या बालन से स्पेशली विशेष चाहिए। हाय ऐसे कर दीजिए। इंडियन क्रिकेट टीम को मेरी तरफ से all the very very best. Do your best and मैम that's all. बजट आ रहा है, मैम बजट आ रहा है, आपने ट्रेन लोकल ट्रेन में मैंने सुना है कि आपने ट्रैवल किया है, तो अभी मुझे बताइए कि अभी रेलवे बजट आ रहा है, मुंबई की जो पब्लिक है बहुत ही पिसती है ट्रेन में, तो बजट के लिए आप उनके लिए आप क्या कहेंगे कि बजट में लोकल ट्रेन के लिए क्या फैसिलिटीज आनी चाहिए, क्योंकि आपने बताया सुना तो है कि ट्रेन्स में सिक्योरिटी होती है, पुलिस रहती है, पर आई एम नॉट श्योर दैट देयर ऑल द टाइम. आई मे बी इल इन्फॉर्म, पर मैंने सुना है कि पुलिस हमेशा नहीं रहती. फॉर सिक्योरिटी रीजंस आई थिंक पुलिस शुड बी देयर थ्रू आउट, एंड देयर शुड आल्सो बी क्लीन टॉयलेट्स at all the railway stations and also in local trains. विद्या, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आओ जाओ रखा करेगा, आप गायब हो जाते हैं, सब आप हमारे साथ हैं.